नमस्ते। आई ग्रू अप इन बिहार। मेरा सारा बचपन बिहार में गया। मैं जमशेदपुर के गांव में बड़ा हुआ एंड आई वेंट टू एन अमेरिकन स्कूल ओवर देयर कॉल्ड लोयोला। सो वी यूज्ड टू हैव फिल्म्स एवरी सैटरडे। सो वो टाइम पे वॉर फिल्म्स, काउबॉय पिक्चर्स, ये सब देखने की बहुत आदत थी बिकॉज दैट इज व्हाट ऑल चिल्ड्रन लाइक। एक दिन आई थिंक मैं शायद 13 साल का था जब 12 एंग्री मैन नाम का पोस्टर लगा हुआ था। मैंने अनाउंस किया कि ये सैटरडे को 12 एंग्री मैन है। तो हम लोग को सबको लगा ये कोई एक काउबॉय पिक्चर है, गोली ढां ढूं ढूं सब चलेगा। बट इट नेवर हैपेंड। इट टर्न्ड आउट टू बी अ कोर्ट रूम ड्रामा एंड द फनी पार्ट ऑफ इट इज बाय द टाइम द फिल्म वाज not even halfway through, most of the students had walked out. So towards the end of the film, there were only about 15 of us in the theater, and I was one of them, and I was a 13-year-old. I was gripped onto that film. आज भी जब मैं 12 Angry Men देखता हूँ, the black and white version, मैं जब सिखाता हूँ, मैं बच्चों को आज भी वो फिल्म दिखाता हूँ, and I tell them this is one of the finest forms of cinema. So this was one thing that really opened my eyes to cinema. फिर उसके बाद I joined सिडनम कॉलेज में महाराष्ट्र आया एंड यहाँ मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में मैंने एक एड फिल्म देखी महाराणा फैब्रिक्स बोल के। उसके इमेजेस आज भी मेरे दिमाग में है। वो ऐसे मांडू के काले रॉक्स के ऊपर देयर वाज अ वुमन वेयरिंग अ येलो आउटफिट ऑन द सैंड्स ऑफ राजस्थान। देयर वाज अ लेडी विद दिस लंबा पिंक रानी पिंक वाला, शॉकिंग पिंक वाला दुपट्टा. So these were very, very iconic images that went into my mind. And one day I had come to Pune. My brother was in the law college, elder brother. And he says, यार आज FTI में हम लोग एक फिल्म देखने जाएंगे, चलो. So his classmate was Mazahir Rahim, our senior director. So we went and saw, and the first film I saw in FTI was Herzog's Aguirre, the Wrath of God. That film has changed my entire perspective towards what cinema is. So these were the influences which drew me towards cinema. So when I finished Sydenham, मेरा BCom जब खत्म हुआ, and when it came to applying, I had applied for XLRI in Jamshedpur, I had applied for Bajaj, and I had applied for TISS. My father's from TISS, so TISS में admission was like a song. You know, वो interview एकदम मेरे father के सब classmates थे. XLRI is again run by my school, so that was not a problem. But when it came to my final application, I got a call from FTI, and I told my parents I'm going to FTI, so I'm going for the interview. So lot of my father's colleagues say, अरे कहाँ भेज रहे हैं बच्चे को, कोई फिल्म में जाता. I'm talking about 75 में कोई फिल्म में नहीं जाता था. सब सब बुरी लड़कियाँ हैं उसमें and all that, So nobody went to cinema. But my parents, they said, yeah, let him try. I got into FTI and I got in for direction. Because technically I am not qualified to be a cameraman. I'm sorry. But वो time the rule was कि आपको BSc होना चाहिए था. मैं BCom था. तो मैंने डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया था. मेरे को डायरेक्शन का कोर्स मिला. बट हमारा कोर्स जो था was a very unique कोर्स. 70 लोग के जगह उन लोग ने उस साल गिरीश कर्नाड ने सिर्फ 15 लोगों को लिया. एंड 15 लोग वो डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5. सो 3 बैचेस में हम लोग ही आपस में फिल्में बनाते थे. इट वॉज नोन एज द इंटीग्रेटेड कोर्स. एंड विच वॉज अ फैंटास्टिक थिंग बिकॉज if I was the director, I would edit and I would script. Nitin would be my cameraman. Somebody else would be the sound engineer. और जो बाकी के जो 2 ढक्कन लोग बाकी रहते थे उनको एक्टिंग करनी पड़ती थी. So that is how it was. So for the first 1.5 terms, that means up to mid-term of second year, we did this, and I realized one thing, that I was very good at camera. I was getting good marks. I was sort of topping the class, and also I realized one thing, that direction is an art form like cinema and like cinematography. एक बार आप उसका ग्रामर सीख जाते हो कि what is the line, what is crossing the line,
ओवर द शोल्डर कैसे होता है. आफ्टर दैट डायरेक्शन इज अ सेल्फ स्टडी. आप जितने फिल्में देखोगे, आप जितनी किताबें पढ़ोगे, आपका नॉलेज बढ़ते जाता है. बट सिनेमाटोग्राफी वैसे नहीं है. सिनेमाटोग्राफी में आपको बहुत कुछ टेक्निकली सीखना पड़ता है. सो आई when at the end of my second year, when we had to opt, I opted for cinematography, and because I had such good marks, I got cinematography. मैं आज भी बोलता हूँ कि there is no law which says कि आपको साइंस ग्रेजुएट ही होना चाहिए, बिकॉज एक लैब में हाइपो का कॉम्बिनेशन क्या है उससे मेरे को क्या लेना देना, लैब वाला देखेगा ना. सो दैट आई एम क्रिएटिंग इमेजेस, आई एम क्रिएटिंग लाइटिंग, और उसके लिए कोई साइंस की डिग्री नहीं चाहिए. ऑफकोर्स बहुत आज चल के जब मैं ये इतने सालों के बाद आई हैव नाउ स्विच टू डिजिटल, आज मेरे को लगता है येस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. यू नो शिरीन फरहाद इन 2011 was my first film in digital. वो भी रोज संजय बंसाली मेरे को पूछता था कैमरा चेक किया, कैमरा चेक किया. मैं एक दिन चिल्लाया, मैं बोला अरे यार अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिल्म है ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है. तो ही इज टेलिंग मी यू आर अ म्यूल, तू गधे जैसा है, तू साला एक बार पकड़ के बैठा है. सो आई वेंट टू प्राइम फोकस, आई sat with Gauri Shankar ji for maybe 6 hours. He took me through the camera. And the fear that we had of digital was taken away from me. क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ डिजिटल ये क्या चीज़ है. A digital camera is nothing but a computer with a lens. The only thing analog is the lens. बाकी का जो है is all basically it's a science. Actually, it's a very funny story. मैं FTI में था, तब जब फाइनल ईयर में पहुंचा, बंकिम कपाड़िया बोल के जो लेटर वो बिकेम द डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स डिवीजन, बंकिम वॉज मेकिंग अ फिल्म एंड बंकिम वॉज माई सीनियर और मैं फाइनल ईयर में था. तो मेरे को बोला यार वरुण मुखर्जी मेरी फिल्म शूट कर रहा है, तू आ जा, तेरे को मैं उसको बोलता हूँ असिस्टेंट के लिए ले ले. सो जस्ट एज आई फिनिश्ड FTI, माई वन एंड ओनली बॉस मिस्टर वरुण मुखर्जी, वी वेंट टू शूट अ गुजराती फिल्म कॉल खोरडानी खानदानी. बहुत मज़ा आता था. चैंग वॉज द चीफ असिस्टेंट, आई वॉज द फर्स्ट असिस्टेंट. मिचल पे शूट होता था, मैं फोकस पे बैठता था, वरुण दा के हाथ में डंडा होता था, वो मेरे सर पे पड़ता था जब भी मैं आउट फोकस जाता था. सो इट वॉज बी ग्रेट फन, इट वॉज अ लवली लर्निंग एक्सपीरियंस. देन फॉर सम रीज़न आई वॉज टू गो बैक, फिल्म शेड्यूल ख़त्म हुआ. आई केम टू पूना बिकॉज आई थिंक माई पेरेंट्स हैड कम टू पूना. आई केम टू मीट देम एंड आई टोल्ड वरुण दा मैं आता हूँ. And I came back and I got my first ad film to produce from Pratibha Advertising. So उसके बाद अगले 5 साल 6 साल मैं पूना में ही रहा. I didn't come to Bombay. Okay. And finally in 1986 I decided that nothing is happening in Pune because वहाँ ad films तो बनती नहीं थी. हम लोग जो भी फिल्में बनाते थे तो सब बॉम्बे में होती थी. So I was not doing any cinema. I was not doing any ad films. I was only doing still photography. I had started industrial photography and all that nonsense. And I was becoming an alcoholic, doing nothing, So one day I told Anjali I'm going to Bombay. उस ज़माने में अंजलि एक छोटी सी एजेंसी चलाती थी and we didn't have money. Was always hard to come by. She had 5,000 rupees saved. She gave me that 5,000 rupees and said go. So I got onto my bullet and I came to Bombay. मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे कोई भी क्लासमेट्स ने मुझे काम नहीं दिया. पंकज पराशर मेरे को बोला है कि वी आर शूटिंग ऑन एरी 3 देखा है क्या. मैं बोला नहीं देखा. सो द ओनली गाय हु गेव मी वर्क वाज माय कजिन हुज नेम वाज शांतनु शेवरे. वो टाइम पे बहुत बड़ा एड फिल्म मेकर था. एंड ही कॉल्ड मी एंड ही गेव मी वन स्मॉल फिल्म टू शूट. देन ही लाइक्ड द वर्क एंड द नेक्स्ट सेकंड फिल्म आई शॉट फॉर हिम was Synthol Soap with Imran Khan, which went to become a huge hit. Immediately after that, we did Synthol Soap with Vinod Khanna. ये 2 पिक्चरों के बाद मेरे को ना तो कभी किसी के पीछे जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा. भगवान बहुत has taken great care of me, and I just my career started.
So it was probably Shantanu and the man upstairs, and of course Sintha also. So Mrs. Godrej, thank you. Like Barunda, boss, वो आदमी is such a understated cameraman. You know, जिनको I feel like there are so many of our colleagues. You know, जैसे मैं अभी आज राफे का काम देखता हूँ. You know, there are so many great cameramen in our country, but people just don't know them. वो हरदम वही होता है ना कि आप 4 लोगों को जानते हो. वैसे मैं देखूँ तो I love Roger Deakins का work. I love, but these were not the cameramans when we were becoming cameramans. समझा क्या? हमारे टाइम में I think we were more with Freddie Young and all those old Hollywood का cameraman. You know, I used to love Alcott's work. Kubrick का जो cameraman था. You know, we had just seen Barry Lyndon. तो पूरा sequences were lit with candles, and he had got a lens from NASA. From there he had used the 0.7 का lens. So all these things were enormous. But आप मेरे को पूछेंगे which is your favorite film, which is your favorite director. It's very very difficult for me to say because I think everything is so nice. You know, I have to tell you one thing. You know, आज तक मेरे लाइफ में मैंने कोई फिल्म कभी आधे में छोड़ी नहीं है. मैं कभी आधे में फिल्म पिक्चर से उठ के नहीं गया हूँ. बिकॉज जो आदमी फिल्म बनाते हैं, कितनी भी अच्छी हो कितनी भी बुरी हो, वो जान लगा के फिल्म बना रहे हैं. जान लगा के फिल्म बनाता है. उसके पास पैसे हैं नहीं है, उसने क्या घर में का माल गिरवी रखा, कहाँ से भीख मांग रहा है, क्या कर रहा है, ओनली ही नोज. एंड विच इज वाई टू मी आई रिस्पेक्ट एवरी सिनेमाटोग्राफर who makes a film or every director, and the least I can do is make sure I watch their film fully. So I have never in my life I have never walked out of any film. It's a very strange thing. Even when I watch Junk every night, I still watch it all the way through. Anjali keeps asking me kya dekhta hai. I'm watching war films right now, all sniper, there's a lot of bullets, blood, gore. I suppose when you turn 70 all these things happen. Blunder ऐसे नहीं, पर you know there have been lot of incidents. I mean with directors. For one thing, I think most people who know me and almost kids who have worked under me and are now cameramen, they'll remember one thing, that on my set, on Mahesh Ane's set, there used to be a lot of laughter and fun. हम लोग कभी मातम में नहीं घूमते थे. हम लोग मौत में भी मजा देखते थे. You know. So it used to be a lot of fun. So we never had a problem of ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. But there are incidents. I remember I was shooting my second ad film in Pune for Wakefield. And it was a 30-seconder. मैंने, you know, we could only afford one डब्बा, 400 फीट का डब्बा. बॉम्बे से कैमरा आया था, एलिक्स कैमरा लेके आया था, किशोर जी का कैमरा. So उसमें नीना गुप्ता वॉज माई क्लासमेट, तो उसको पटा के बोला चल तू मम्मी का रोल कर. बच्चे को खाली कस्टर्ड खिलाना था. हाँ, तो जो कुछ भी पहले ये है वो सब हो गया था. अब बच्चे का ईटिंग का शॉट था. मुंह पे ले जाओ तो बच्चा मारे, मुंह पे ले जाओ मारे. अब उधर मेरा स्टॉक जा रहा था यार, मेरे पास कुछ लास्ट का 40 फीट बाकी था. मेरी तो फटी हुई थी. मैं बोला ये बच्चा मारते रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगा. और क्लाइंट खड़ा है ऐसा पीछे, किट्टू एंड ऑल दिस, द मल्होत्रा फैमिली वाज ऑल एट द बैक. क्या शूट हो रहा है. फिर फाइनली वो जो उनके कंपनी का जो टेक्नीशियन आया था जिसने आइसक्रीम बनाया था, आई सेड सर क्या, व्हाई इज द चाइल्ड नॉट ईटिंग. वो मेरे को देख के बहुत सिंपल, नो शुगर. सो आई सेड व्हाई हैव यू नॉट पुट शुगर, प्लीज टेल मी. नो इट विल मेल्ट इफ यू पुट शुगर. उसका कुछ थियरी था. तो फिर हम लोग ने कुछ तो भी बनाया, उसमें शक्कर डाला और बच्चे को खिलाया. बच्चे ने खाया. हैप्पीली मेरे पास कुछ 20 फीट बाकी था. मैं बोला अरे वाह, फिल्म हो गया. फिर हम लोग जिस घर में शूटिंग कर रहे थे, तो जो सब आइसक्रीम जो जेली वेली था हम लोग ने हेज में फेंक दिया. मैं बोला वो पिघल जाएगा, मूंगी खाएगी. 5 दिन के बाद हमको मिसेस वर्दे का फ़ोन आता है की तुम्ही काय टाकले माझ्या गार्डन में. ऐसे नो, व्हाट इज इट मैम. तुम्ही किती येऊन बघ. सो आई वेंट देयर. दैट जेलीज हैड नॉट मेल्टेड because they had put so much of gelatin because of the lights and everything. So jelly was still as is, you know. So there are incidents like this which keep happening. See, मेरे को एक लगता है कि particularly advertising में
एक ज़माने में जब मैं एड्स करता था, द डायरेक्टर हैड अ लॉट ऑफ से इन द फिल्म, यू नो, आई मीन जब हम लोग ने मैगीज शूट किए थे, लिली डोंट बी सिली, पंकज कपूर और जावेद वाली, प्रहलाद के साथ, पहले दिन ही हम लोग सेट पे पहुंचे, प्रहलाद ने बोला दिस स्क्रिप्ट्स आर बैड, तो सब हम लोग बैठ के हम लोग ने स्क्रिप्ट, ये जो अगले 13 पिक्चर बनी छोटी छोटी, दे वर ऑल रिटन बाय जावेद, प्रहलाद, मी, फ्रेडी बर्डी, ऑल दीज पीपल ऑन द सेट टूटे, नए सेट बने एंड स्टार्टेड शूटिंग. एंड एजेंसी का जो लड़का था, ही कॉल्ड अप मिस्टर ओबरॉय, हु इज द हेड ऑफ दिल्ली HK, जहाँ से वो फिल्में आई थी, कि इन लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं शूट कर रहे. तो वो आया, अगले थर्ड डे लैंडेड अप, सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़ के वो राजकमल के स्टूडियो के गेट पे था, और उसका और प्रहलाद का झगड़ा हो रहा था, ऐसे लिटरली एक दूसरे के सामने. एंड ही इज सेइंग यू आर नॉट शूटिंग एज पर द स्क्रिप्ट, प्रहलाद इज सेइंग यू डू व्हाट द हेल यू वांट टू डू. और प्रहलाद ने उनको क्या बोला कि यू कैन बाउंस द फिल्म्स, आई डोंट केयर, बट दिस इज व्हाट आई एम शूटिंग. एंड दोज फिल्म्स वेंट टू मेक हिस्ट्री. Today, if you see the product Maggi, this was Maggi sauce, but the entire brand of Maggi stood on this. So, this used to be the power that a director had. Today, that is not there in advertising anymore. Ajkal, there's creative, there's storyboards, there's a look test, there's so many things. I'm not saying that is bad. I think it's very good. It's very good. It's very international what we are doing now. Similarly with our films. जब मैं पहले और मैं BR इशारा, बाबूदा की पिक्चर शूट कर रहा था, राजेश खन्ना का प्रोडक्शन था, सेट पे साला स्क्रिप्ट लिखा जाता था, लिटरली रोज आता था, बाबूदा आके कुछ बोलते थे और वो उधर पीछे बैठ के एक बेचारा लिखता था और वो शूट होता था. मैंने गोविंदा की और तुषार कपूर की रन बोला रन नाम की एक पिक्चर की, जो नीरज वोरा ने डायरेक्ट की थी. नीरज भी ऐसा ही था, सुबह आता था, टू वॉच नीरज वॉज अ डिलाइट. वो चलता था, उसके बाजू में 2 लड़के डिक्टाफोन लेके घूमते थे, एंड नीरज पूरा सीन एनैक्ट करता था. फिर ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इट वॉज सो डिलाइटफुल टू वॉच इट. और वो जाके फिर टाइप करके आर्टिस्ट को आता था. आज ये नहीं होता है. आज आपके पास बाउंड स्क्रिप्ट नहीं है, तो आपको कोई एक्टर, कोई प्रोड्यूसर खड़ा नहीं करता है. हमारे टाइम में पिक्चरें बनती थी 3-3 साल. संजय दत्त के बाल लंबे होते थे, कभी छोटे होते थे, एक ही पिक्चर में सब चलता था. टुडे इवन द एक्टर्स आर लुकिंग एट गिविंग यू अ परफॉर्मेंस, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज के अंदर पिक्चर कंप्लीट करो, आगे चलो. सो क्या है कि देर इज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट हैज कम इनटू इट, विच इन अ वे इज वेरी गुड, एंड आई थिंक इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर फिल्म मेकिंग, एंड this is the way films should be made. As a matter of fact, this is how films were made earlier in India also. जब गुरुदत्त and all used to make, वो टाइम पूरा मैंने बाकायदा आपका कॉल शीट होता था, ये है वो है. फिर बीच में जाके 70s to 80s to 90s cinema went for a toss. There was no discipline left in cinema. अब जाके वापस discipline has come. But again, this is a part of which relates to a digital thing. I feel that when film went out, the discipline of cinema went out, because digital के साथ अब क्या हो गया, अरे ये भी शॉट ले लो, वो भी शॉट ले लो. लोग सोचते नहीं हैं, उनको लगता है कि वो कैमरा कुछ भी कर सकता है. मैं उनको हरदम बताता हूँ, कैमरा cannot think, you still have to light it. So what if it is a digital camera? वो कितना अच्छा दिख रहा है, but you still need lighting. This is a very difficult question, because क्या है कि in my life also, barring some work of mine, at most times I didn't have a choice. You know, I was not as popular a cameraman as a lot of my colleagues who could choose. So very often I didn't have a choice to choose. But I used to listen to the script, and उसके ऊपर डेफिनेटली स्क्रिप्ट के मेरे लगता है मेरे लाइफ में मैंने मैक्सिमम 3 या 4 पिक्चर रिजेक्ट की होंगी, यू नो, बिकॉज आई डेंट लाइक द स्क्रिप्ट. बट ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु केम टू मी, यू नो, एक टाइम पे हिंदी थे, हिंदी के बाद जब मराठी वाले आते हैं, तो मराठी की जो बहुत ही जो मैंने फिल्में की हैं, दे आर ऑल नाइस फिल्म, यू नो, वेदर इट इज़ पितृऋण और दशक्रिया
और प्रकाश आमटे. तो you know the films had the substance, so it was worth it. So it was always there. And a lot of times, whether I chose the director or not, I was chosen. I have a feeling for one reason, because हम लोग का जो एक इन्वॉल्वमेंट होता था, I keep telling the students whom I teach now कि after a point a cameraman ceases to be a cameraman when he becomes very senior. I am also being considered as a silent associate director. Even when I work with, say, Ashutosh, there are a lot of times when, he doesn't interfere in my cutting. So I'm not saying because I'm cutting, so I'm the director. That is not what I'm saying. But जो मैं बोलता हूँ कि लोगों को लगता है कि एक कैमरामैन का काम है सेट पे जाके लाइटिंग करना. That is not true. एक कैमरामैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप सही तरह से स्क्रिप्ट समझे. And you are there as the whole and soul support to the director. Director and cameraman, ये मेरी बहुत पुरानी स्टेटमेंट है. I like husband and wife. झगड़ा करो, ये करो, then you kiss and make up and you start. So ultimately you are creating a baby which is your film. So it's a very, very combined kind of and a very, very strong association. And most directors I know who have hired me are also looking at this thing or this ability of mine to help them directorially on the set. I'm not talking, I never interfere with the director as to how he deals with the actor. I only interfere in the technical part. मेरे को यदि लगा कि ये शॉट इज रॉन्ग, आई विल गो अप टू डायरेक्टर. और ये ऐसा नहीं कभी कैमरा के ऊपर बैठ के सर ये गलत है. नो, देयर इज एटिकेट. आप कैमरा से उतरो, जहाँ डायरेक्टर बैठा है वहाँ जाइए. एटिकेट है कि आप उनसे आराम से बात करो, एक्सप्लेन टू हिम कि आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम. एंड दैट्स हाउ फिल्म्स आर मेड. ये नहीं कि मैं मेरे पैंथर पे बैठा हूँ तो मैं आई कैन से एनीथिंग आई वांट. नो, द डायरेक्टर इज स्टिल माय बॉस. आप यदि मेरी कौन सी भी फिल्म देखी है, आई बिलीव इन अ सिंगल सोर्स. आई बिलीव इन अ सिंगल सोर्स में मैंने जो भी से सीन है, एक बार सीन मैं समझ जाता हूँ तो वो सीन का एक सोर्स हम लोग डिसाइड करते हैं. हालांकि ये फीचर फिल्म में ये सब पहले से ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि टुडे बिफोर आई डू अ फीचर फिल्म, उसके पहले 6 महीने का तो रेकी वेकी ये सब चलते ही आराम से, स्क्रिप्ट डिस्कशन सब कुछ. सो यू क्रिएट अ सिंगल सोर्स. You create a single source, and I do, which I popularly call my all India lighting. Okay. Once I finish that, जब आप सीन शूट करने लगते हो तो मेरे को सिर्फ अपना फिल का एक्सेस चेंज करना पड़ता है, बाकी का लाइट्स रिमेन द सेम. आई ऑलवेज डू दैट. इफ यू सी एनी ऑफ माई फिल्म, यू विल नेवर फाइंड माई सोर्सेज चेंजिंग. सिर्फ एक फिल्म में ये तारा वो तारा में एक जगह, वो गाना जो है स्वदेश का, उसमें एक पॉइंट पे मेरा सोर्स उल्टा हुआ है. वो भी शाहरुख का एक क्लोज है. एंड दैट टू बिकॉज वो हम लोग का लुक गलत हो गया, हम लोग ने शॉर्ट फ्लिप किया और वो आज भी मेरे को खटकता है क्योंकि सडनली इट इज गोन, बट नोबडी सीज दैट. बट आई टेल यू, लाइटिंग का कैसा होता है ना, लाइटिंग जब आप करते हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइटिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग. मैं जो हरदम बोलता हूँ, आप जस्ट डोंट रश ऑन टू द सेट एंड स्टार्ट लाइटिंग. प्लीज अंडरस्टैंड योरसेल्फ. इसका एक छोटा इंसिडेंट था. मैं सेकेंड ईयर में जब हम लोग स्टूडियो काम करने लगे FTI में, कुलकर्णी साहब हमारे प्रोफेसर थे. तो एक दिन मैं लाइटिंग कर रहा था, वो टाइम मिचल के ज़माने में. आई वॉज लाइटिंग एंड मैं लाइट कर रहा था तो कुलकर्णी साहब आए. मैं वो क्या कर रहे तू? सर नहीं सर, थोड़ा गड़बड़ हो गया. इसे क्या किया है? तो हम लोगों ने क्या किया था, एक सोर्स क्रिएट किया था, उसका कुछ फिल डालने गया तो उसका एक शैडो उधर बना. वो शैडो मारने के लिए और एक लाइट लगाया, वो लाइट लगाया, उसका एक शैडो उधर गया, फिर ये मारने के लिए एक इधर लगाया. तो क्या हुआ कि एक हमारा सेट था, एक कैरेक्टर था जिसका ऊपर कोई सोर्स नहीं दिख रहा था और सेट पे मल्टीपल शैडोज थे. तो कुलकर्णी साहब ने मेरे को कहा
क्या कर रहा है? सो ऐसे नहीं सर, ऐसा हो गया. तो इसे जब ऐसा होता है ना, शांत हो जाओ, लाइट बंद करो, जाके घूम के, तू सिगरेट पीता है ना, एक सिगरेट पी के आ जाओ, हाँ, एंड स्टार्ट अगेन. दिस वॉज द बेस्ट एडवाइस दैट आई गॉट, कि इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, डू नॉट ट्राई एंड कवर योर मिस्टेक. Accept the fact that you have made a mistake, rethink the shot, rethink the scene, and relight it. Yes and no. I'll tell you, fulfilling, yes. I mean, if you look at the amount of work, I've done over 40, 45 feature films, I've done over 2000 ads. So, us graph mein, yes, it is satisfying. But when I look at it, that so often, I did not get the kind of films I wanted to do. Unfortunately, you know, this is a very strange thing. I won the award, national award, for Swades. तो गुरुजी अपना आर्ट डायरेक्टर, उनका फ़ोन आया, वाह वाह कॉन्ग्रेचुलेशन. आई सेड वेरी नाइस, थैंक यू विनोद. फिर विनोद मेरे को बोला मराठी में, आता घरी बस 5 वर्ष, मीन्स बाबा अभी तू 5 साल घर में बैठने वाला है. तो बोला यार क्या बात कर रहे हैं, इसे ऐसे होता है, नेशनल अवार्ड वालों को कोई काम नहीं देते हैं. I said okay, and that happened. So after Swades, I did not have a single release till Shirin Farhad. That is almost 9 years later, 7 years later. I had shot very big films. I had shot Alibag for Sanjay Gupta, but unfortunately there was the problem between Sanjay Dutt and Sanjay Gupta, and the film stopped. I had shot Coffin Maker, which has won so many awards abroad. Nasir has got the Best Actor award in New York, but the film never got released in India. So क्या होता था कि मैं फिल्में शूट करता था, फिल्में रिलीज नहीं होती थी. And this is not one. I did 2 English films which just didn't get released. You know, I had done a great film called Good Sharma, which was directed by a director called Suri Krishnamurthy. He's an Indian Britisher, born in there. So he was telling me, Mash, we're going to get the BAFTA for this. We're going to get the BAFTA for this. इतना अच्छा काम हुआ था हमारा. But the film never got released because the Indian partner, पैसे के चक्कर में उन्होंने फिल्म डुबा दी. So I went through a very, very low period. My advertising work started coming down. After Swades, I was not getting advertising work. So what happened was, more than the unhappiness, it is a bitterness that comes into you. You know, you say, yeah, what have I done wrong that I'm not getting work? And there is no answer to it. There is no answer to it, because why you are not getting work, nobody can answer that. नहीं है. But जो भी होता है, you know, एक हरदम वो मेरे को बहुत खटका है. फिर उसके बाद मेरे को मेरी पहली मराठी फिल्म मिली. It was a film directed by a guy called Sanjay Surkar, called Lathi. Sachin Kedekar, and then a good cast. Unfortunately, Sanjay Surkar died while we were shooting. He got a heart attack on the set. Tutu Sharma was the producer. So later I finished, you know, उसका लास्ट का 10-15 मिनट जो बाकी था वो मैंने डायरेक्ट एंड शूट करके फिल्म कंप्लीट की. उसके बाद मेरे को काफ़ी अच्छी मराठी फिल्में मिली. आई गॉट पितृऋण, I got Prakash Amte, I got Dashakriya, you know, then I got Pushpak Viman. So there were a lot of good films I did, you know, which were very satisfying. But then, you know, क्या होता है कि अपने इंडस्ट्री में, अच्छा वो मराठी वाला है, वो हिंदी वाला है, क्या फ़र्क पड़ता है? जब साउथ के आदमी लोग आके इधर शूट करते हैं, हम लोग को ये तो नहीं बोलता है ना वो साउथ का है, you know. And I'll tell you one advantage that the South cameraman had over all of us in Bombay was the fact उन लोग वहाँ from the start, आप पीसी को देखो, आप रविचंद्रन को देखो, उन लोग सब करते थे. They used to do advertising, they used to do feature film, they used to do documentaries, जो भी they do television program. हमारे यहाँ क्या हो गया था, एडवर्टाइजिंग और फीचर फिल्म में इतना बड़ा डिवाइड हो गया था. एडवर्टाइजिंग वाले कौन फीचर फिल्म करेगा, फीचर फिल्म वाले अबे 30 सेकंड वाले, यू नो, ये एटीट्यूड हो गया था. एंड दैट हैज हार्म्ड अस मच मोर. हम लोग आज बोलते कि साउथ वाले आए बिकॉज दे वर सो स्प्रेड आउट. दे हैड मच बेटर. आई मीन आई रिमेंबर व्हेन रवि केम, यू नो, ही स्टार्टेड डूइंग, ओ विरासत करके बॉम्बे आया, एंड ही स्टार्टेड डूइंग एड फिल्म. ही वाज डूइंग वंडरफुल, ब्रिलियंट वर्क. सो दैट वाज इट वाज, यू नो, कि
always there has been a big issue in particularly in Bombay. But I think with the coming in of digital, things change. फिर OTT platforms आए, corporates got into it. So we all felt that cinema will change. But it really didn't. Corporates and the OTTs went back to the same studio system. आपके पास कितना भी अच्छा स्क्रिप्ट हो तो वो पहला क्वेश्चन है एक्टर कौन है. मेरी काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है इस बात पे, मतलब कि स्क्रिप्ट अच्छा है तो आप एक्टर लाइए ना, मेरे पास कहाँ है. आई कांट गेट एन एक्टर बिकॉज आज मेरे को कोई एक्टर खड़ा नहीं करता है. दैट इज़ द चेंज, दैट इज़ द ग्रेट चेंज दैट वी बीन थ्रू. एक टाइम पे एक्टर्स वर वेरी अप्रोचेबल. फिल्म सिटी में हम लोग शूट करते थे, बाजू में सलमान था, हम लोग जाके बैठ के बात करते थे. ही इज ड्राइविंग पास, यू स्टॉप एंड टॉक एंड गो. टुडे यू कांट. टुडे द एक्टर हैज गॉट अ रिंग ऑफ पीपल अराउंड हिम. I mean, I know Amir, I know Shahrukh. I'm not saying that they're my buddies, but I know them. दिखते हैं तो 2 मिनट रुक के बात करते हैं. If I have to meet Shahrukh, if he's there on the set, I can't break through that cauldron. I have to find out his makeup fellow. I have to find out somebody whom I know and just अरे you know SRK को बोलो I'd like to see him. Then I'm let inside. So बहुत कुछ change हो गया. Actually trying to pitch my own film right now as a director, though I have directed a lot, but it doesn't come easy. जल्दी काम मिलता नहीं है, you know. आज भी वही हो रहा है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे जाओ, they are all very nice because they know your name, they entertain you, they message back to you, they say please send us the script, but after that nothing. But if I had a Karan Johar behind me, or if I had a Anurag Kashyap, and if he pushes me, it is so much easier. If Ashu is behind me to say, I will present a script of yours, it makes so much sense. So that's always there. So that is there, but I have had this script with you for almost 10 years. It's been written by Arshad, and it's a brilliant script. अभी देखो हुआ तो हुआ, नाम है बिल्लो रानी, बना तो देखो. So if you walk around my farm, you'll see what I love. How much I love my dogs. I have a little shooting range at the back. So all that goes on, you know, is there. And we love traveling. Anjali and I, and even when my children were small, we made sure we showed them as much of the world as we could. Absolutely stick to the story. As a matter of fact, Swades के बाद I got a very bad review from Minty in Telka saying, oh, it's so documentary-like and this, that and all. But I realized कि why I shot that film the way it looks. क्योंकि मैं reality पे था. I never wanted to show Shahrukh Khan as the. मैंने आप देखोगे बहुत कम backlight and separations and all use किया है, you know. So and it is shot in a very true manner. धूप था तो धूप में शूट किया है. ऐसा नहीं कि हर कैरेक्टर को घुमा के बैकलाइट में लो. हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि शाहरुख इज डार्क एंड गायत्री वॉज वेरी फेयर. तो जब भी साथ में होते तो ऊपर से झाड़ का पत्ता लगाओ, ये करो, काफ़ी करते थे. बट आई नेवर ग्लैमराइज. उस पूरे फिल्म में देयर इज ओनली वन सीन विच हैज़ अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ ग्लैमर, विच इज़ वो जब वो लड़का देखने को आता है गायत्री को एंड शी रिजेक्ट्स द बॉय एंड इन लोग खाना खाने बैठे हैं एंड इन दोनों की आर्ग्यूमेंट होती है. आप उसकी लाइटिंग देखो, उसकी लाइटिंग इज रियली वेरी डिफरेंट. देयर इज अ बैकलाइट, वो नीचे से बाउंस है फेस के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट. बिकॉज इन माई माइंड दैट वॉज द पॉइंट व्हेन शाहरुख फॉल्स इन लव विद हर. सो हिज होल नजर अंदाजा चेंजेस टू व्हाट ही इज सीइंग, हाउ ही सीइंग her. So that was the point where we glamorized it. But otherwise, it depends. I stick to a reality. I prefer to stick to the script. Art department. Absolutely. In many films, I sit with the art director and design the sets. आप यदि कॉफिन मेकर देखोगे तो उसका पूरा सेट डिजाइनिंग मैंने गौतम सर के साथ बैठ के किया है. बिकॉज आई न्यू हाउ द लाइट्स आर गोइंग टू बी एंड व्हाट द सीन इज. सो यू नो देयर इज अ एक जगह बैठ के वो नसीर खुद के साथ चेस खेलता है. तो आई मेड दैट इनटू एन अल्कोव. सो मेरे को 3 पॉइंट मिलता था लाइटिंग के लिए. एक चपटा खिड़की रहता था तो इट वुड बी. सो हियर आई यूज्ड टू एक्चुअली गेट
three very distinct. So there are a lot of times when a cameraman has to work very closely with the art department. You know, like स्वदेश में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है बट मेरे पीछे 300 लोग थे जिनके वजह से मेरे को अवार्ड मिला है. मेरे लाइटिंग की टीम, आर्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, you know, Ashu, the actor's performance, all that culminates into one award. अवार्ड तो बेचारा एक ही आदमी ले जाता है, बेचारा कहते एक ही हंसते हंसते ले जाता है, पीछे के 300 लोगों को कोई पहचानता भी नहीं है. So that is one very important thing. कि I think art direction is probably the most interesting thing I find on a set, you know. Unfortunately क्या हो गया कि there are more cinematographers coming into the market than there is work. So मैं हरदम अभी यदि मेरे को कोई फ़ोन करता है, आजकल तो मैं इतनी शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट ऑल थ्रू माई टाइम आई ऑलवेज एनकरेज पीपल टू कम ऑन द सेट. FTI के लड़के आते थे, सर कैन यू टेक, आई सेड नो आई डोंट हैव स्पेस ऑन द टीम बट मैं ऐड शूट कर रहा हूँ, बाबा आप 3 दिन के लिए आ जाओ. तो I want to tell this to the young people coming into this industry कि do not get discouraged. You know, एक तो today approaching a cameraman has become very difficult. You cannot. Again, जैसे एक्टर के बाजू में एक टीम होती है, कैमरामैन के बाजू में एक पूरा सर्कल होता है, चीफ असिस्टेंट से लेके उसके जो 2-4 लोग रहते हैं. अशोक जी के पास 7-8 की टीम होती थी, I still remember. But they will never let you break through. They will never let you break through, and I keep telling the guys कि keep trying. हाँ, मैं बोला कि कैमरामैन से दोस्ती करने के पहले चीफ असिस्टेंट को पटाओ. आप खाली सेट पे खड़े रहो. आप सेट पे जब खड़े रहते हो ना, आप बहुत कुछ सीखते हो. There are a lot of things we don't learn in a film school, which you learn on a set. And the biggest thing is you go home a very happy man. जो आप घर में बैठ के 4 दीवार देख के मेरे पास काम नहीं है, एक डिप्रेशन जो आता है वो आप हटाइए. लोगों को बोलो यार प्लीज़, आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट एनीथिंग, मेरे को आपके सेट का खाना भी नहीं चाहिए, मेरे को आगे खड़ा रहने दो, मेरे को खाली देखने दो. एंड मोर देन अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल विल एग्री, एंड दिस इज नॉट नेसेसरी विद द DOP. आप किसी को भी पूछ सकते हो. यू कैन आस्क द आर्ट डिपार्टमेंट, यू कैन आस्क द साउंड पर्सन. Nobody says it. Say, how, please. You know, you learn a lot, and I think you become a happier person because, you know, ultimately we all live for cinema and nothing else.